A year has passed since the abrogation of special status of J&K. On August 5, 2019, BJP government in Delhi passed J&K reorganization bill in the parliament, with which the erstwhile state of J&K was downgraded into two union territories of J&K and Ladakh. The decision was followed by a strict clampdown, communication blockade and arrests of over 7,300 people, including 3 former chief ministers and Hurriyat leadership. It has been a tumultuous year since. Just as the region was limping back to its routine normal in March 2020, COVID-19 pandemic struck. The pandemic brought with it the strict clampdown, restrictions, blockade and several other curbs on the movement of the people. On the first anniversary of August 5, 2019 decision, we are analyzing the BJP's dream of Naya Kashmir. Here we see what BJP promised in 2019 and what has been delivered on the ground in Kashmir, in Jammu and in Ladakh. Kashmir Chamber of Commerce and Industries, a conglomerate of business bodies in Kashmir, has reported a loss of rupees 40,000 crores since August 5, 2019. Small businesses are completely shut in Kashmir, while as the industrial estates are also not functioning to its full potential. The business community in Kashmir is waiting for a huge monetary package from the government so that the businesses come out of the stress and they could restart their outlets in coming months. अब 1 साल हो गया कि इतनी खराबी हो गई कि पूछो मत। हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, ना काम है ना धंधा है, बच्चे बेकार बैठे हुए हैं, हम खुद भी बेकार हैं। खुदा ही बेहतर जानता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। गवर्नमेंट भी कहीं है ही नहीं, बोलते एक चीज़ है और करते दूसरी चीज़। लोग भी सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं। The pro-election political parties in Kashmir like National Conference, People's Democratic Party, People's Conference continue to complain about strict restrictions on their movement. The political parties are saying that they stand by the Gupkar Declaration signed on August 4, 2019, in which they have vowed to fight and for the safeguarding of the special status of J&K. What remains to be seen is when they are allowed to move out freely, will they stick to the declaration or they will chart a different political course for themselves. With the killing of over 136 militants in different encounters across J&K in this year, the government and the army claims that the violence has been controlled in Kashmir after the abrogation of the special status of the J&K. The recent abduction of army men in Kulgam puts a question mark on such claims, and an unverified audio clip of the new Hizb commander Dr. Saifullah, who claimed that the many youth are ready to join the militancy but they have been stopped under a strategy, also is a new challenge for the security establishment in Kashmir. With the abrogation of special status of J&K, locals fear and are threatened that the move is aimed to change the demography of the region. पिछले साल यानी कि 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया और जो हमें जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे, हम लोग जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे उनको मतलब वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे कूड़े का ढेर बन गए। और हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को मिला डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और सबसे ज़्यादा हरासमेंट का जो शिकार हो रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को बनाते हुए वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का क्राइटेरिया भी बड़ा अजीब है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 15 साल तक जो लोग यहाँ पे रह चुके होंगे और यहाँ से रहकर चले भी गए होंगे वो भी और उनके आने वाले बच्चे भी होंगे, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे यहाँ पे डोमिसाइल लेने के लिए। दूसरा ये होगा कि जो यहाँ के जो सेंटर के एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जो जॉब करके चले भी गए हैं, उनको भी वो एलिजिबल कर देंगे डोमिसाइल लेने के लिए। तो बताइए आगे ही जो हमारी स्टेट है जम्मू कश्मीर, जो रिसोर्सलेस स्टेट है, यहाँ पर आगे रिसोर्सेज की कमी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना ज़्यादा ओवरबर्डन हमारे ऊपर डाल दिया गया है। यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर के बीच में से जो स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया, जो हमारे थोड़े बहुत राइट थे वो भी खत्म कर दिए गए, जो फेडरल स्ट्रक्चर जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। तो मुझे समझ में नहीं आता है अभी कि क्या आप लोग जम्मू कश्मीर के लिए लेकर आ रहे हो। आज 1 साल होने को आया, हम लोगों को क्या मिला? कोई नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी के नाम पर क्या किया आप लोगों ने? नौकरी भी छोड़ दीजिए, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि लद्दाख को एक यूटी बना दिया जाए, जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए। लेकिन लद्दाख के लोगों में खुशी थी, लद्दाख के लोगों की ये 70 साल से मांग थी कि लद्दाख को यूटी दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ में कुछ प्रश्न हमारे मन में आए।
हमारे लद्दाख के युवाओं के फ्यूचर में जब उनको जॉब्स दिए जाएंगे उसका क्या होगा, हमारे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का क्या होगा, हमारे लैंग्वेज का क्या होगा। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने 5 अगस्त को खुद कहा पार्लियामेंट में जाकर कि कश्मीर के अंदर हमारे भाषा लुप्त होने का खतरा था। आज वही खतरा मंडरा रहा है और आज हमारी बातों को सुनने वाला कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया। सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में लद्दाख के छात्रों ने धरना डाला और अपनी मांग उठाई कि हमें 6 शेड्यूल दीजिए, हमारा अधिकार हमें दीजिए, लेकिन सरकार का नुमाइंदा कोई सुनने नहीं आया। मैं बस यही सरकार से अपेक्षा करता हूँ, उनसे उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने एक झट से यूटी दे दिया, विदाउट लेजिस्लेचर दिया, आधी मांग दी, लेकिन साथ ही साथ में 6 शेड्यूल नहीं दिया। लद्दाख के छात्र आज 6 शेड्यूल की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त को एक त्योहार के तौर इसलिए मना रही क्योंकि 5 अगस्त ही वो दिन है जब 370 जो नफरत की दीवार जो पूरे देश और जम्मू कश्मीर को आपस में बांट रही थी, वो नफरत की दीवार ढह गई। भारतीय जनता पार्टी इसको त्योहार इसलिए मना रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से हमारा स्लोगन था एक विधान एक प्रधान एक निशान, जो भारतीय जनता पार्टी के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और आज हम इसलिए भी खुशी मना रहे हैं क्योंकि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ पटेल जी का जो सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज आपके सामने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका सपना था वो पूरा होगा। और आज हम इसलिए ज्यादातर खुशी मना रहे। देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू व कश्मीर प्रगति, पीस और डेवलपमेंट के रास्ते पे है। आज देखिए कितने नए नए प्रोजेक्ट्स, और एक भी यहाँ तक देखिए कि आज एक भी रोड कहीं मैग्नेमाइज के बगैर नहीं है। कल ही एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई कि हिस्ट्री में पहली बार जो बीडीसी चेयरमैन है उनको 25 लाख का सीडीएफ फंड दिया गया। मेरा कहना यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का हर एक कार्यकर्ता इस दिन को त्योहार के तौर मना रहे। इसलिए आज हमने हेडक्वार्टर्स जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, चाहे जितना भी हमारा कश्मीर जोन का हेडक्वार्टर है, उस पर हमने तिरंगा लहराया, हमने मिठाइयां बांटी, हमने फूल बांटे, इसलिए कि जो नफरत की दीवार है वो नफरत की दीवार ढह गई। The government says that the move was taken to empower the communities like Valmikis, West Pakistan refugees and Gorkhas who haven't got their due for past 70 years. The government has already issued thousands of domicile certificates. The Lieutenant Governor of the J&K, GC Murmu, says that the addition of 5 lakh to 10 lakh people to a population of 1.5 crore doesn't amount to any demographic change and is not any threat to the culture, economy and the population of the region. What remains to be seen is will this fear and threat turn into any of the protests or it will subside as the time passes.